Hello children of class 3, Joram Tako here, your teacher for English subject. Today we will start the first lesson of our textbook, the English Root course book. The first lesson is a story, an imaginary story, a fairy tale. So let us start reading the story. Lesson 1, Mystery of the Jam Tarts. What is mystery? This is not the mystery that works in constructing building. ये वो मिस्त्री नहीं जो घर बनाता है, फर्नीचर बनाता है. ये वो मिस्त्री नहीं है. तो इस मिस्त्री का अर्थ है, the meaning of mystery is something that is very secret, something like a puzzle, something which is very difficult to understand and explain. हिंदी में जिसे हमें रहस्य कहते हैं, रहस्य जिसको हम समझने के लिए तकलीफ होता है. जैम टार्ट्स क्या है? जैम टार्ट्स एक खाने का चीज़ है जो फ्रूट और शुगर से मिलकर बनता है. उसको बॉईल करके खाने का चीज़ है जैम टार्ट्स. नाउ वार्म अप. Scooby loves tarts. So Scooby is an elf, an imaginary being, very small, tiny creature, looks like a human being with long pointed ears, and who is said to have magic power. So Scooby loves tarts. Help him find the tarts hidden in the garden. So Scooby wants to find the tarts hidden in this garden. So you have to help Scooby the elf to locate the tarts in this garden. So let us see where the tarts are hidden in this garden. You see, one is here. Here also we can see it is here, this here, under the bench also, and this one. So these are the tarts that are hidden in this garden. So we have succeeded in locating them, in finding them out. Now let us start reading the story. Reading. Scooby was a naughty elf, always looking out for some fun. One fine morning, he saw Mrs. Big Ears keep a tray of jam tarts to cool on her windowsill. So before going deep into the story, let me tell you who are the characters in this story. The characters are Scooby. Scooby is a naughty elf. Then number 2, Mrs. Big Ears. So Mrs. Big Ears is a name of a lady in this story. Then third one is Mr. Buzz. So Mr. Buzz is a police officer. So these are the 3 characters in this story. So what it says, Scooby is an elf who is very naughty. He always tries to find some fun. हमेशा कुछ न कुछ शैतानी करने की ताक में रहता था ये जो स्कूबी है. तो एक सुबह क्या होता है, मिसेस बिग ईयर्स जैम टार्ट्स को पका के एक ट्रे में रख के उसको खिड़की के नीचे में जो शेल्फ बना हुआ है वहाँ पे रख देता है. विंडो सिल उसे कहते हैं. विंडो सिल मीन्स अ शेल्फ अंडर अ विंडो. तो गरम पकाया हुआ था, थोड़ा ठंडा होने के लिए विंडो सिल में रख देता है. Then let us see. Here you can see this is the police officer and he is the elf.
Nobody makes jam tarts like Mrs. Big Ears, Scooby said to himself. तो स्कूबी ने बोला मिसेस बिग ईयर्स बहुत अच्छा जैम टार्ट्स बनाता है, उसका जैसे कोई दूसरा नहीं बना सकता है, क्योंकि उसको जैम टार्ट्स का स्मेल मिल रहा था, इसलिए वो बोलता है जैम टार्ट्स बहुत अच्छा बनाता है मिसेस बिग ईयर्स। When Mrs. Big Ears came out, she noticed the tarts missing from the tray. Who could have taken my tarts? All 6 of them. She was very angry and marched up to Mr. Budge the policeman. तो कुछ देर के बाद में मिसेस बिग ईयर्स अपना टार्ट्स को जो विंडो सिल में रखा था ठंडा होने के लिए उसको लेने आती है। तो वहाँ पे देखता है कि ट्रे तो है लेकिन उसमें 6 नंबर्स ऑफ जैम टार्ट्स वेयर देयर, 6 तो जैम टार्ट्स रखा हुआ था, लेकिन देखता है तो वो गायब हो गया है जो जैम टार्ट्स पकाया वाला, पूरा 6 का 6। तो बहुत गुस्से में आ गई मिसेस बिग ईयर्स और पटापट वो पुलिस स्टेशन के तरफ रवाना हुई। और पुलिस स्टेशन में एक पुलिस ऑफिसर है जिसका नाम है मिस्टर बज, उसके पास में पहुंच गई। You must find out who has stolen my jam tarts, Mr. Budge, you must, she cried. Certainly, Mrs. Big Ears, we don't like thieves in Elfland. Mrs. Big Ears went away, but Mr. Budge wondered, who is the thief? How do I solve the mystery of the jam tarts? तो पुलिस स्टेशन में पहुंच गई। पुलिस स्टेशन में आके सीधा पुलिस ऑफिसर को बोलती है, कंप्लेंट देती है कि आपको पता करना है कि किसने मेरा जैम टार्ट्स को चुराया है। तो फिर पुलिस ऑफिसर जो है मिस्टर बज वो मिसेस बिग ईयर्स से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं पक्का दूध निकालूंगा। सर्टेनली मिसेस बिग ईयर्स, वी डोंट लाइक टीव्स इन इल्फलैंड, हम लोगों को अपना देश में टीव्स बिल्कुल पसंद नहीं है, चोर बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं हर हाल में उसको पकड़ूंगा। तो उसके बाद मिसेस बिग ईयर्स चला जाता है, लेकिन मिस्टर बज जो सोचना शुरू करता है, ही स्टार्टेड वंडरिंग कि कैसा कौन हो सकता है जिसने जैम टार्ट्स चुराया, कौन हो सकता है वो चोर। तो उसने सोचा कि इस प्रॉब्लम को, इस मिस्ट्री को, इस पजल को मैं कैसा सॉल्व करूँगा। सो हियर यू कैन सी मिस्ट्री मीन्स पजल। नाउ सून मिस्टर बज वॉज ऑन हिज बीट डाउन द मेन स्ट्रीट। तो थोड़ी देर में मिस्टर बज अपना तहकीकात शुरू कर दिया। अपना ड्यूटी पे वो बाहर आ गया रास्ते में, और रास्ते में कभी इधर कभी उधर और ढूंढ रहा है कि चोर कौन हो सकता है। ब्रूम, somebody crashed into मिस्टर बज। उसी समय में कोई उससे टकरा जाता है जो कि बहुत स्पीड से आ रहा था। अचानक मिस्टर बज को भी समझ में नहीं आएगा। थर्ड बैंग, ये है थर्ड मतलब टकराने का आवाज़, और बैंग है गिरने का आवाज़। द पुलिसमैन फेल ऑन हिज बैक एंड somebody fell on top of him। द पुलिसमैन फेल ऑन हिज बैक एंड somebody fell on top of him। तो क्या हुआ है कि किसी का साथ में जब टकराया तो पुलिसमैन जो है, पुलिस ऑफिसर जो है मिस्टर बज, और ज़मीन पर गिर गया, और उसका ऊपर जो उससे टकराया था वो भी गिर गया। Hey, shouted Mr. Budge and took a tight hold of the person. He pulled him up and saw a familiar face. जब वो आदमी उससे टकराया था और उसका ऊपर गिर गया था, तो मिस्टर बज को बहुत गुस्सा आ गया। उसने चिल्लाया, अरे कौन है तुम, और उसको जोर से पकड़ लिया। He pulled him up and saw a familiar face। तो जब आदमी पकड़ के जब अच्छी तरह से देखा है तो उसको एक फेमिलियर फेस में, फेमिलियर मीन्स जिसको आपको पहले से जानते हैं, या जो जाना पहचाना चेहरा है। तो उसने देखा कि अरे ये तो जाना पहचाना चेहरा है, इसको तो मैं मालूम हूँ। स्कूबी, व्हाट आर यू डूइंग रनिंग एट टॉप स्पीड एंड ब्रेकिंग द लॉ। तो उसने चिल्लाया, अरे ये तो स्कूबी है, स्कूबी तुम क्यों इतना तेज़ दौड़ रहा है, इतना स्पीड में जा रहा है, ज़्यादा स्पीड में दौड़ना ये कानूनन गलत है, तुम कानून को तोड़ रहे हो, मिस्टर भाई ने उससे कहा।
जोर से कहा। एंड व्हाट इज दैट बल्जिंग इन योर पॉकेट, और तुम्हारा पॉकेट में कुछ फूल रहा है वो क्या है, बल्जिंग हो रहा है वो क्या है। बल्जिंग मीन्स जब हम लोग स्टिक आउट, जब पॉकेट में कुछ रखता है तो वो जब फूल जाता है उसको बोलता है हम बल्जिंग। तुम्हारा पॉकेट में कुछ है जो फुला हुआ है, इस पॉकेट में क्या रखा है। तो आई स्कूबी स्टैमर्ड, स्कूबी अच्छा से जवाब नहीं दे पा रहा है, स्टैमरिंग कर रहा है। स्टैमरिंग मतलब हकलाना, स्टैमर टू हैव डिफ़िकल्टी इन सेइंग सर्टन वर्ड्स। तो जब हम लोग कभी कभी हम लोग हकलाता है, स्टैमर करता है, तो उसको बोलता है स्टैमरिंग। तो यहाँ में स्कूबी जो है जो बोलना चाहता था अच्छा से नहीं बोल पा रहा है, स्टैमरिंग का साथ में हकला के बोल रहा है। व्हाट इज इन हियर, तो मिस्टर बज आस्क्ड डिगिंग इनटू स्कूबीज पॉकेट। तो स्कूबी का पॉकेट में हाथ डालते हुए पूछा कि तुम्हारा पॉकेट में क्या है। व्हाट इट इज, द policeman's hand was covered with a pink gooey liquid। तो जब पॉकेट में हाथ डाला तो उसमें कुछ चिपचिपा गीला चीज़ उसको मिला है। सो gooey मीन्स सॉफ्ट एंड स्टिकी। स्टिकी मतलब जो चिपचिपा होता है, गम जैसा होता है। तो उसका पॉकेट में डाला है तो बहुत सॉफ्ट, थोड़ा लिक्विड जैसे, और चिपचिपा चीज़ उसका हाथ में महसूस हुआ पॉकेट में डाल के। तो पूछा है कि ये क्या चीज़ है। He took it to his nose। बाद में हाथ निकल के जब नाक का तरफ ले गया तो उसने सूंघ के देखा। This smells like jam। वो बोला तो ये तो जैम जैसे, जैम का गंध आ रहा है। इनफैक्ट जस्ट लाइक मिसेस बिग ईयर्स स्पेशल जैम। तो वो बोला कि ये तो एग्जैक्टली मिसेस बिग ईयर्स ने जो जैम टार्ट्स बनाया था उसी का गंध आ रहा है। अरे नो आई डिडंट, स्कूबी स्टैमर्ड अगेन। वो बोला नहीं हमने चोरी नहीं किया है, ऐसा स्टैमरिंग के साथ में फिर बोला। क्योंकि वो जब चोर पकड़ा जाता है तो तब उन लोग कभी कभी नर्वस हो जाता है, तब सही ढंग से नहीं बोल पाता है, तो स्टैमरिंग करके बोला। तो बोला कि नहीं हमने नहीं चोरी नहीं किया। तब फिर मिस्टर बज बोलता है ओ यस यू डिड, यू स्टोल द जैम टार्ट्स, आई हैव सॉल्व द मिस्ट्री नाउ। मिस्टर बज वाज स्मग, कम अलोंग मिस्टर स्कूबी thief, let us go to the police station and you will pay Mrs. Big Ears for her jam tarts। तो पुलिसमैन बोलता है हाँ तुम बोल रहे नहीं चुराया था, जो पॉकेट से निकला है तो वो तो वही जैम टार्ट्स था जो मिसेस बिग ईयर्स का विंडो सिल से खो गया था। तुमने चोरी किया है, तुम अभी बचने नहीं सकेगा। तो मैंने चोर को पकड़ लिया, और ये जो अभी जो जैम टार्ट्स जो एक गायब हो गया था, एक मिस्ट्री हो गया था, एक पजल हो गया था, उसको मैंने सॉल्व किया है। उसके बाद मिस्टर बज वाज स्मग। मिस्टर बज मतलब मिस्टर बज बहुत अपने आप को प्राउड फील किया। स्मग मीन्स प्राउड। तो उसका साथी उसने स्कूबी को पकड़ के चलो मेरे साथ पुलिस स्टेशन बोल के उसको खींच के ले जाएगा। तुम पुलिस स्टेशन में जाके तुम अभी मिसेस बिग ईयर्स का जितना भी जैम टार्ट्स तुमने खाया है या उसको चोरी किया है उसका तुम भरपाई करना पड़ेगा। यू हैव टू कॉम्पेंसेट फॉर द जैम टार्ट्स। तुमको मिसेस बिग ईयर्स को उसका दाम देना पड़ेगा। तो ये मिस्टर बज उसको ऐसा बोलता है और उसको फाइन ले लेता है और मिसेस बिग ईयर्स को उसका दाम दे देता है। सो दिस स्टोरी इज रिटन बाय सुतापा बासु। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस स्टोरी, द mystery of jam tarts. So you read this story as many times as possible and try to understand the meaning of the words, especially the new words. Many of them are given here, and I have also sent you the, apart from these words given in the book, I have sent you all the new words in this sentence with the meaning I have already sent you in the form of notes. So that is all about this story. The exercises later I will let you know. I will send it to you in the WhatsApp group in the form of notes. So that is all about the story. Thank you very much. See you again.